बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज है छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने छावा का जो रिव्यू देखा था उसमें भी हम लोग को ये बात बोली गई थी कि हम लोग कि कल जो है वो जयंती है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। उसी से रिलेटेड वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे महोत्सव? टाइटल है वाई छत्रपति शिवाजी महाराज स्टिल लिव्स इन पीपल्स हार्ट, सदगुरु। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि सदगुरु क्या बताते हैं। और लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल के शो लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। People from the Indian background would know much about this. I am not going into the historical aspects of this person, but there was a king, Chhatrapati Shivaji Maharaj, you know. Shivaji, who was a great king or an emperor, who's, kind of acquired a tremendous amount of respect for his administration, for his bravery, for his courage and his strategy of how he fought in those times. Hugely respected, especially people from Maharashtra. So Shivaji is relevant even today because of the way he conducted his administration. Very evolved, enlightened administration he did. Very little people know about his administration. Generally, they know only about his battle strategies, which are admired and appreciated, but the most important thing was his administration. Very evolved administration he did for his kingdom. So he had a guru whose name was Ramdas. One day Shivaji was standing in the balcony of his palace. Then he saw his guru going from house to house with a begging bowl, begging. Then he thought, what is my guru doing, begging on the streets? I'm a king, my guru can't be begging on the street, he must be. Then he called Balaji, who was his assistant, wrote a chit and sent it, please go and place it at the guru's feet. So he went and placed this chit at the guru's feet. So he picked it up and saw, and Ramdas smiled. And next day, he came to the palace and he said, in this chit, Shivaji had written, I am placing my entire kingdom at your feet. You can do whatever you want with the kingdom and me. So, Ramdas said, now that you have forsaken your kingdom and given it to me, what are you planning to do? So Shivaji said, Sadhguruji, whatever you say, you are my Sadhguru, whatever you say, I will do. And I just want to be around you and serve you, that's all I want to do. Then Ramdas had an extra begging bowl. So take this. And both of them went begging on the street, the emperor and the guru. People, when the guru came to their house, they thought he's just some beggar, they gave whatever they gave. Now the emperor has come, with great respect, they gave whatever they could. It's only now that if a beggar comes home, people are putting cooked food, leftover food, all kinds of things. But in this culture that was never done in the past, they only gave ingredients, rice, dal, like this. So it's for them to go and cook their food and eat. So after their begging rounds were over, they went near the river and the guru prepared a small meal, a simple meal of the whatever ingredients had come that day, and
After he finished eating, what was left over? The king, the Shivaji, no more a king, ate. Then they were sitting under a tree and Shivaji smiled and said, "Now that you turned me into a beggar in just 24 hours, what else do you wish to do with me?" So Ramdas said, it's called gherav, that means a piece of orange cloth. He gave this orange cloth, which was on his body, he took it and gave this orange cloth. And he said, "Use this as your banner and go back and rule the country. But just know, this is not your kingdom. If you know this doesn't belong to you, you don't own it, and you will do the best that you can for the people, that is the way you must rule." So Shivaji always used the orange cloth or the orange flag as his banner, and he administered his kingdom in a most enlightened way possible to run a kingdom. Why I'm telling you this story is, Shivaji rose in his stature, lives in the hearts and minds of this country because he lived in grace. He fought battles, many, but absolutely balanced, never in anger, never in hatred, never lost in anything, just doing what is needed. Grace is the greatest empowerment that you can have. Once grace enters your life, every little thing is, how do I become available to grace? Grace does not mean it's coming from one direction somewhere. As gravity is, grace is, but in a much bigger dimension, because gravity works only to a certain distance. Grace is the basis of the creation. But you won't be available to it if you have strong walls of individuality. If you become dispassionate, slowly the walls will dissolve. Now it breathes grace. Everything in you breathes grace. इतिहास में जो है ना, इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो याद रखते हैं। एक वो जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया हो, और एक वो जिन्होंने प्रजा के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म जो है वो किए हों। तो मेरा ख्याल है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जाए ना, तो आप जब उनके बारे में सुनते हैं कि भाई वो अपनी प्रजा का जो है वो कितना ख्याल जो है वो रखते थे, और ख़ास तौर पर अपने लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते थे, तो लाजिम पता है जब ऐसे जो है आपके राजा होंगे या आपके ऊपर जो आपके लीडर होंगे, तो आप उन्हें हमेशा याद रखेंगे। वैसे आज हिस्ट्री के बारे में सुनकर मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि मतलब जब उस टाइम के जो राजा थे, ठीक है ना, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनकी किंगडम इतनी बड़ी होती थी कि दुनिया की हर चीज़ वो अपने कदमों में रख सकते थे। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए तपस्या करते थे। मतलब अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बात करें या फिर हम लोग संभाजी महाराज जी के बारे में बात करें, तो उनकी लाइफ के जो थोड़े बहुत पहलू हम लोगों ने वीडियोज़ के माध्यम से देखे हैं, तो ये चीज़ पता चलती है कि उन्होंने अपने आप को उस पद पर बिठाने के लिए कितनी ज़्यादा तपस्या की है। उन्होंने वो आपके लोग के जो एक इंसान को उस लेवल तक होना चाहिए और जिस तरह का उसका स्वभाव होना चाहिए, वो सारी चीज़ों की एक ट्रेनिंग ली है उन्होंने। देखे ना, हाँ नहीं बोलो। देखिए ना, उनकी अगर तपस्या की बात करें ना, वो अवाम की यानी जनता की जो है वो सेवा की थी। उनके साथ जो है ना कदम से कदम मिलाकर चलने की थी, क्योंकि आपको बहुत सारे साम्राज्य जो है वो ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी तपस्या सिर्फ जो है एक्सपेंशन के साथ साथ रूल करने की थी। वो सिर्फ रूल करना चाहते थे, बेशक वो जो है गले उतार कर जो है वो रूल करें या बेशक जो है वो अलायंस करके रूल करें, उनका ये था। लेकिन जो है आपको जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, तो भाई आपको जो है ना एक चीज़ नज़र आती है कि जो है ना खुशहाली हमेशा वहीं पर होती है जहाँ पर जो है ना हुकूमत करने वाला जो है, जो सरकार है वहाँ की, वो वहाँ की पब्लिक के साथ मिलकर और
पब्लिक के हक में जो है वो चीजें जो है वो कर रही हो। देखिए ये जो गले उतारने वाली बात है ना, वो सब इन्वेडर्स से, ठीक है ना, उनकी वो जमीन नहीं थी। मैं बता क्या कि जो इन्वेडर्स थे वो अपने आप में भी यानी कि एक गले उतार के अपने भाइयों के हो गए या अपने रिश्तेदारों के सरकार बनाने के लिए उनके भी गले उतार दी। मैं बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आगे बताती हूँ ना, फिर पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेकिन जो आपकी अपनी मट्टी होती है ना, अपनी जमीन होती है, अपने लोग होते हैं, आपका उनके प्रति लगाव जो होता है वो आपको पता होता है कि आपने अपने बाग को किस तरीके से संवारना है। जो बाहर से आएगा उसको तो बस ये कि उसने छीनना है। तो दोनों की अप्रोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और जो बाहर से आएगा उसकी अप्रोच होगी कि भाई मुझे जो भी मेरे हाथ लगता है ना, मैं इसको लेकर भाग जाऊं या फिर मैं इन पर जबरदस्ती चढ़ जाऊं। तो ये एक अप्रोच का डिफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरा मैं कहूंगी कि जो मैं शुरू में बात कहना चाह रही थी कि उस टाइम के जो बादशाह थी उसमें और आज के लीडर्स में सबसे बड़ा फर्क जो मुझे नजर आता है ना, कि आज के लीडर्स बहुत ज्यादा आराम पसंद हो चुके हुए हैं और वो भूल चुके हुए हैं कि हम लोगों को लोगों की किस तरीके से खिदमत करनी है। उस टाइम के लीडर्स की अगर हम लोग बात करें, उनको पता था कि हमें अपने साम्राज्य के साथ साथ जो हमारे लोग हैं उनको किस तरीके से जो है वो अच्छे से रखना है। तो जैसे उन्होंने अपने गुरु को देखा, और ये पहले के टाइम में हम लोगों ने भी देखा है कि जो गुरु थे मतलब वो या जो अतिथि होते हैं वो मतलब पहले टाइम में इस तरीके से डोर टू डोर जाया करते थे। इवन कि वैसे अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो हम लोग भी अपने बचपन में ही देखते हैं कि पहले जब घर में कोई आया करता था ना, मतलब कोई भी बेगर आया करता था, तो उस टाइम पर लोग आटा चावल ये चीजें देते। पैसे देने का इतना ज्यादा ये एक रवाज अभी हुआ है, पहले नहीं होता था। अब वो मांगने वाले भी तो ये कहते हैं भाई पैसे जो है वो दे दें। और अगर आज के टाइम में और पहले के टाइम में जो है ना फर्क देखें, तो पहले के लोगों में ना फिर भी एक होता था, किसी को एक गलत कर रहा है तो उसे कंसीडर जो है वो किया जाता था, गुरु की तरफ से जो बताया जाता था कि आपने। और लेकिन अगर आज के टाइम पे बात की जाए ना, आज के टाइम पे अगर किसी को पता ना कि इस बंदे के हाथ में पावर है तो उसके आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती, बस यही कहता है कि भाई हाँ जी आप जो है वो सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं कि वो एक कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो वो आपको हकीकत होती है आज के टाइम पे जो है वो नज़र आती है। जो एक एलीट क्लास जो मुल्क को चलाती है, उनको जो है अपने नीचे वाले तबके की नहीं पड़ी, वो अपना देख रही है, हुकूमत अपना देख रही है, हर बंदा जो है आज के टाइम पे आपको ये नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से वो गुरु जो हैं वो लेकर गए, छत्रपति महाराज जी को भी साथ में लेकर गए, तो एक चीज ये भी समझ आती है कि जो लोग हैं वो राजा को देकर उनको ज्यादा जो है वो दान देना शुरू हो गए थे। तो एक चीज मतलब जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ ये कि जो उनका रोल है वो उसके मुताबिक है, मतलब वो पूरे लोगों के सामने एक फेस हैं और उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन सब चीज़ों से डिटैच होकर के मतलब ये चीज़ें मेरी ही हैं, अगर आप उनके साथ जुड़े रहोगे और उनको अपना समझोगे तो शायद कहीं ना कहीं पर आपके दिमाग में एक जो है वो चीज़ चढ़ जाती है। लेकिन उस पावर को अपने सर पे चढ़ने नहीं देना, बल्कि लोगों के लिए लोगों के पक्ष में काम करना और अपनी जो ज़मीन है उसके लिए काम करना। मुझे लगता है कि शायद ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। और इसी से रिलेटेड गुरुजी जो हैं उन्होंने भी मुझे लगता है कि उनको एक तरह से जो समझ सोच और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दी। और मतलब अगेन मैं क्षमा चाहूँगी अगर मैं कुछ गलत समझ रही हूँ, बाकी ये कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन जो केसरी रंग के बारे में जो बताया गया बीच में, तो वो भी एक आइडिया हुआ कि कहाँ से मतलब वो सब स्टार्ट हुआ उनके गुरु की तरफ से। और मैं ये बात देखती हूँ कि अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो गुरु का एक वाकई में बहुत बहुत बड़ा एक महत्व रहता था इंसान की लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए। और दूसरा उसके साथ मैं बोलूँगी कि सीरियसली जो ग्रेस की बात की सदगुरु जी ने, चीज़ें समटाइम्स समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग समझ ज़रूर जाते हैं बट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए हमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं पर वो हम लोग चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करते अच्छे से, हम सिर्फ सुनते हैं उनको। सो जैसे जैसे चीज़ें थोड़ा बेहतर हो लाइफ में, मुझे लगता है कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इन आज जो हम लोगों ने वीडियो देखी है इस के बारे में पहले पता था
या आपके लिए भी नहीं है, जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।